درود ان پر، سلام ان پر، یہی کہنا خدا کا ہے۔ خدا کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صلی اعلیٰ کا ہے۔ غریبوں کے والی، مسکینوں کے ہمدرد اور بیماروں کے بے کس آقا دنیا میں تشریف لائے۔ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے انسانیت کی صبح سعادت کا آغاز ہوا۔ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان آقائے دو جہاں کی آمد کا جشن مذہبی عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں۔ مزید اس رپورٹ میں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، فقیروں کا ملچا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کا پاک اور مقدس دن، جسے مسلمان پوری دنیا میں بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ظلم و جہالت کے بادل چھٹ گئے، انسانیت کا شرف بحال ہوا اور غم زدہ مسرور ہوئے۔ 12 ربیع الاول کا دن قیامت تک کے لیے بہار اور مسرت کا پیغام ہے۔ ملک بھر میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن کی خوشی میں سرکاری غیر سرکاری عمارتوں کو برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ چار سو روشنی اور نور سے سما جگمگا رہا ہے۔ فضا میں درود و سلام کی صدائیں ہیں۔ مساجد میں محافل میلاد اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے دلوں کو منور کیا جا رہا ہے۔ جلوس میلاد میں مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضا معطر ہے۔ 12 ربیع الاول کا مقدس دن محبت رسول کی تجدید اور سیرت طیبہ پر عمل کے عہد کا دن ہے۔ رحمت، محبت، اخوت اور انسانیت کی خدمت، یہ وہی تعلیمات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ بناتی ہیں۔ محبت کا منبع ہے ذات آپ کی، جہاں آپ کا کائنات آپ کی، سراپے محبت مجسم کرم، محبت ہے ساری حیات آپ کی۔ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عاشقان رسول نے شہر دلہن کی طرح سجا دیا۔ گھر، گلیاں، بازار برقی قمقموں سے روشن، سبز پرچموں کی بہار، فخر کائنات کے حضور عقیدت کے پھول نچاور، ہر سو درود و سلام کی صدائیں۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل، کراچی والوں کا مذہبی جوش و خروش دیدنی۔ آپ کو بتائیں، محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی پر عاشقان رسول نے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا ہے۔ گھر، گلیاں، بازار برقی قمقموں سے روشن ہو چکی ہیں، سبز پرچموں کی ہر سو بہار ہے، فخر کائنات کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، ہر سو درود و سلام کی صدائیں بلند ہیں۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل ہے، کراچی والے مذہبی جوش و خروش سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی پر عاشقان رسول نے شہر دلہن کی طرح سجا دیا ہے۔ گھر، گلیاں، بازار برقی قمقموں سے روشن، سبز پرچموں کی بہار ہے، فخر کائنات کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، ہر سو درود و سلام کی صدائیں بلند ہیں۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل ہے، کراچی والوں کا جوش و جذبہ دیدنی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عاشقان رسول نے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا ہے۔ گھر گھر، گلی گلی، کوچہ کوچہ، ہر بازار برقی قمقموں سے روشن ہو چکا ہے، ہر سو سبز پرچموں کی بہار ہے، فخر کائنات کے حضور عقیدت کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، ہر سو درود و سلام کی صدائیں ہیں۔ ملک بھر میں آج عام تعطیل، کراچی والوں کا مذہبی جوش و خروش دیدنی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اسامہ ملک سے۔ اسامہ، آگاہ کیجیے گا، آج عید میلاد النبی کس طرح سے منایا جا رہا ہے؟ جو مرکزی جلوس ہے شہر قائد کا، وہ ظہر کے بعد نماز ظہر جو مسجد ہے وہ وہاں سے
पहला जुलूस होगा वो खानागढ़ से होता हुआ मोमिन मस्जिद पहुंचेगा, फिर वहाँ से आगे बढ़ेगा। दूसरा जो जुलूस होगा और वो तकरीबन दोपहर 2 बजे यहाँ पर 2:30 पर पहला जो मरकज़ी जुलूस है शहीद मस्जिद के यहाँ से रुकेगा। मौलाना याकूब अंसारी की क़यादत में जिसे पहले मोमिन मस्जिद और फिर जो है वो गुलजार हबीब मस्जिद पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा जो जुलूस है वो 2:30 पर मौलाना अकबर जज की क़यादत में मोमिन मस्जिद से रवाना होगा, जिसे असर के वक्त आराम बाग मस्जिद में जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। तीसरा जो मरकज़ी जुलूस होगा वो मौलाना शाह अब्दुल हक कादरी की क़यादत में मोमिन मस्जिद से बरामद होगा। 3 बजे तक तैयार किया गया है, लेकिन मरकज़ी जुलूस होगा तो मिस्टर पार्क पर तकरीबन 6 बजे पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। ट्रैफिक में जो है वो मुख्तलिफ मुतबादिल रास्ते फराहम किए गए हैं। शहर में तमाम जो हैवी ट्रैफिक है उससे पाबंदी है। एमए रोड पर किसी भी आम ट्रैफिक से दाखिला उसका बंद है। सिर्फ जो है वो जुलूस से शिरकत करने वाली जो गाड़ियां हैं उनको एक मखसूस पासेस जारी किए गए हैं, जैसे पास होगा वही एमए रोड पर दाखिल हो सकेंगे। नाजिराबाद से जो आने वाला ट्रैफिक है उसको लड़कीला चौक और विक्टर रोड गार्डन से होते हुए अपनी मंजिल की जानिब जा सकती है, जबकि याशाबाद से आने वाली जो ट्रैफिक है वो 3 मंजिल से बाएं जानिब मुड़कर सेंट्रल जेल मार्टन रोड की जानिब जा सकती है। हसन इस्वार की जो पीपल्स कारंगी से आने वाली ट्रैफिक है वो कश्मीर रोड किफायती सिग्नल से मुतबादिल रास्ता इख्तियार करेगी, जबकि गुरु मंदिर से नुमाइश की जानिब जो है वो ट्रैफिक से जाने की इजाजत नहीं होगी। अलबत्ता जो सारा पैसों से नुमाइश जाने वाली सोसाइटी लाइफ सिग्नल से जो है वो कश्मीर रोड की जानिब देखी जाएगी। सेंट्रल जेल जो है वो गुरु मंदिर और आने जाने वाला ट्रैफिक मुतबादिल रास्ता वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले नबी करीम के यौम विलादत पर शहर भर में जश्न मिलाद की रौनकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत पर गली गली चिरागा, हर सू जश्न की बहार। शहर क़ायद में 12 रबीउल अव्वल पर छोटे बड़े जुलूसों का सिलसिला जारी है। 12 रबीउल अव्वल के 3 मरकज़ी जुलूस मेमन मस्जिद से रवाना होंगे। 12 रबीउल अव्वल पर कराची के मुख्तलिफ अज़लां में ट्रैफिक प्लान नाफिज। शहर में हैवी कमर्शियल ट्रैफिक के चलने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। एम जिन्ना रोड पर तमाम गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। उसामा, आगाह कीजिएगा, एम जिन्ना रोड पर भी तमाम जो गाड़ियां हैं उनका दाखिला ममनू करार दिया गया है, मुतबादिल रास्ता क्या होगा? बिल्कुल, जो मरकज़ी जुलूस हैं वो एम जिन्ना रोड पर ही बरामद होंगे। मेमन मस्जिद से लेकर जो निश्तर रोड है, निश्तर पार्क है, वहाँ पर मरकज़ी जुलूस जाएंगे। बीच में जो मुख्तलिफ जुलूस हैं वो कुछ खारादर और जो है वो कुछ गुलजार हबीब मस्जिद पर जाकर इख्तिताम पजीर होंगे। ट्रैफिक प्लान भी मुरतब किया गया है। जो एम जिन्ना रोड है उस पर किसी भी जो है वो आम ट्रैफिक को आने की इजाज़त नहीं होगी। जैसे जुलूस बरामद होगा, आस पास की जो गलियाँ हैं उनको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। सिर्फ जो मखसूस पासिस वाली गाड़ियां हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी की गई हैं, वो अगर जिस भी गाड़ी के पास होगा वो ही सिर्फ जो है वो जुलूस में शामिल हो सकती है। एम जिन्ना रोड लकी स्टार से भी जो है वो रोड को बंद किया गया है, जबकि सोसाइटी सिग्नल से जो आने वाले लोग हैं वो कश्मीर रोड इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रैफिक की अपनी मंजिल की जानिब जा सकेंगे। बंस रोड से जो आने वाले लोग हैं वो पीछे की जानिब से टावर का रोड इख्तियार करते हुए जा सकेंगे। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये 3 मरकजी जुलूस होंगे। पहला जो जुलूस है वो तकरीबन 2 बजे शहीद मस्जिद खारादर से निकलेगा और फिर मेमन मस्जिद से होता हुआ गुलजार हबीब मस्जिद पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। दूसरा जो जुलूस है वो मौलाना अकबर दर्ज की क़यादत में मेमन मस्जिद से बरामद होगा और असर के वक्त जो है वो खारादर जो आराम बाग मस्जिद है वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा। जबकि जो तीसरा मरकजी जुलूस है वो मेमन मस्जिद से तकरीबन दोपहर 3 बजे निकलेगा और वो पूरा एम जिन्ना रोड से होता हुआ निश्तर रोड पर जो निश्तर पार्क है वहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर एक जलसा आम भी मुनक्किद होगा। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त भी देखें जो RRF के जवान हैं और जो दीगर सिक्योरिटी के इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये मेरे अक़ब में मेमन मस्जिद है, यहीं से जो है वो तीनों जुलूस मरकज़ी जुलूस आते हुए यहीं से बरामद होंगे और उसके बाद जो है वो फिर एम जिन्ना रोड से होते हुए निश्तर पार्क पर जो जुलूस है वो आखिरी इख्तिताम पजीर होगा। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते फराहम कर दिए गए हैं। किसी भी गैर मुताल्लिक़ शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। जी उसामा, बताइएगा आवाम की कितनी तादाद इस वक्त सड़कों पर मौजूद है? जुलूस में कितने लोगों की तादाद जो है वो बताई जा रही है?
देखिए क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है तो सैकड़ों की तादाद में तादाद जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, काउंटलेस तादाद है मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त भी जो है वो छोटे बड़े जुलूसों का सिलसिला जारी है, जिसमें औरंगे टाउन, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और जो अतराफ़ के इलाके हैं, इसी तरीके से कौरंगी, मलीर और जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर इस वक्त भी छोटे बड़े जुलूसों का सिलसिला जो है वो जारी है। मरकज़ी जुलूस जो है वो यहाँ से अहमद जिना रोड से बरामद होगा, जिसमें तमाम जो मकातिब फ़िक्र के लोग हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। जो मरकज़ी जुलूस है वो मौलाना शाह अब्दुल हक कादरी की क़यादत में सफ़र 3 बजे निकलेगा। उससे कबल भी जो है वो 2 जुलूस निकलेंगे, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात भी शिरकत करेंगी। ये एक मरकज़ी जुलूस होता है, इसलिए जो इसकी सिक्योरिटी के लिए भी अहम तरीन इंतज़ाम किए गए हैं। जो मुख्तलिफ मकामात हैं, ऊँची इमारतें, उस पर भी कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो तैनात होंगे। पहले जो है वो जुलूस की गुजरगाहों पर जो बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला है वो भी सर्चिंग करेगा और उसके बाद ही जो है वो जुलूस को आगे बढ़ने की इजाज़त दी जाएगी। मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त भी जो है वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम विलादत के सिलसिले में जुलूस निकाले जा रहे हैं और हर छोटे बड़ी जो है वो मसाजिद से जुलूसों की सिलसिला जो है वो जारी है। उसामा बताइएगा, सफाई के क्या इंतजामात किए गए हैं रास्तों में? देखें मुख्तलिफ मकामात पर आज सुबह भी मैं जब आ रहा था तो मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों को जो है वो क्लीन किया जा रहा था, जहाँ पर स्वीपर इस वक्त भी तैनात थे और अहमद जिना रोड ख़ास तौर पर उसकी जो है वो मुकम्मल तौर पर कहीं भी हमने ऐसे नाकिस इंतजामात नहीं देखे। मुकम्मल तौर पर जो है वो सफाई के इंतजामात हैं। कुछ लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत भी यहाँ पर सफाइयाँ वगैरह कर रहे हैं और जो इंतज़ामिया है वो भी हमें मुतहर्रिक नज़र आई है। अलबत्ता इस वक्त जो है वो कुछ गर्मी का ज़ोर है तो सबीलें मुख्तलिफ मकामात पर लगाई गई हैं और जो जुलूस के शरका हैं उनके लिए लंगरो नियाज का भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतमाम किया गया है। ओवरऑल अगर सूरत हाल बात की जाए तो अहम तो जो जुलूस हैं उनकी बेहतर है। अगर दीगर इलाकों में सूरत हाल हो तो वो कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ वो कौरंगी के कुछ एरिया हो गए, मलीर के जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पर कुछ एरिया हो गए, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में सरजानी, औरंगी, जो दीगर मकामात हैं वहाँ पर भी छोटे बड़े तकरीबन अगर एक काउंट की तादाद बताई जाए तो 500 से ज़ायद जो जुलूस हैं वो निकलेंगे। तो इंतज़ामिया के लिए भी जो है वो एक चैलेंज का बाइस होता है कि हर जगह जो है वो इंतज़ामिया पहुँचे, लेकिन जो मरकज़ी जुलूस है वहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया मुतहर्रिक है और जो रोड वगैरह है उसको क्लीन प्रॉपर तरीके से किया गया है। उसामा, जिस तरह से गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जुलूस निकल रहे हैं तो बच्चे भी मौजूद होते हैं, जज्बा इतना ज़्यादा होता है, रसूल से मोहब्बत इस कदर होती है, तो इन केस ऑफ एमरजेंसी कोई तिबी इक़दाम किए गए हैं कि अगर किसी को कोई इस तरह का इशू हो जाए तो उसको किस तरह से फर्स्ट एड दी जाएगी? देखिए बिल्कुल, जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिनकी जानिब से जिसमें रेस्क्यू इदारे हैं वो मौजूद हैं। मेरे कैमरामैन आपको इस जानिब अगर मूव करके दिखाएं तो जहां कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं वहीं पर दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं जिनमें ईदी हो गई, छिपा हो गई, रेस्क्यू 1112 वो जो है वो जुलूस के आगे भी मौजूद होंगे। और जुलूस की इस वक्त भी देखें ये तमाम वो एम्बुलेंसेज है जो कि जुलूस के अंदर ही जिनके पास पासेस मौजूद हैं, ये तमाम वो लोग होंगे जिनके पास पासेस मौजूद हैं और ये गाड़ियों के अंदर ही मौजूद रहेंगे। इसीलिए जो है वो ये अगर कोई भी ऐसी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है या अगर खुदा न खास्ता किसी को गर्मी के बायस जो है वो बेहोशी की हालत होती है तो फौरी तौर पर जो है वो उसको तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। लेकिन अगर ऐसे भी सूरत हाल हुई तो फिर उसको करीबी जो अस्पताल होगा वहाँ भी मुंतकिल कर दिया जाएगा। गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है इसीलिए जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का भी एहतमाम किया गया है। चूँकि ये जुलूस जो है वो 3 बजे के बाद निकलेगा तो इसमें मज़ीद जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए। मोहब्बत का मिंबा है ज़ात आपकी, जहाँ आपका कायनात आपकी, सरापा मोहब्बत मुजस्सिमे करम, मोहब्बत है सारी हयात आपकी। मौसम इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का जश्न, ईद मिलादुन नबी पर आशिक़ाने रसूल ने शहर दुल्हन की तरह सजा दिया। घर, गलियाँ, बाजार बरक़ी कुमकुमों से रोशन, सब्ज़ परचमों की बहार, फ़ख्रे कायनात की हुज़ूर अक़ीदत के फूल नछावर, हर सो दरूद व सलाम की सदाएँ। मुल्क भर में आज आमदाद है कराची वालों का मजहबी जोश व खरोश भी। निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत पर क़रिया क़रिया रोशन, घर, गलियाँ, मसाजिद और शाहराहें चिराग़ों से जगमगा उठी। गुंबद ख़ज़रा और खाना काबा की मौजूद और सब्ज़ झंडों की बहार, हर सू दरूद व सलाम की सदाएँ।
नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिलें सज गईं। आशिक़ाने रसूल का वालेहाना इज़हार मोहब्बत, फ़िज़ाएँ ज़िक्र मुस्तफ़ा से मौसर, जश्न मिलाद की महफिल, रैलियाँ और जुलूस, महफिल नात के बाद खुसूसी दवाओं का अहतमाम। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पर दिली मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, उम्मत मोहम्मदी को मुआशरे में अदल, बर्दाश्त और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का अमली मुज़ाहिरा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अहद करें कि हम सीरत तैयबा को अपने किरदार, इनफरादी रवैयों और इज्तिमाई तर्ज़ अमल में इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम मुसलमानों की दीनी और दुनियावी इस्लाह फलाह के लिए मशअले राह है। आज दुनिया में बदअमनी, इंतशार और खलफशार का खात्मा सिर्फ उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने से मुमकिन है। आपको बताएं, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की वलादत पर दिली मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, उम्मत मोहम्मदी को मुआशरे में अदल, बर्दाश्त और इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ का अमली मुज़ाहिरा करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अहद करें कि हम सीरत तैयबा को अपने किरदार, इनफरादी रवैयों और इज्तिमाई तर्ज़ अमल में इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों की दीनी और दुनिया फलाह के लिए मशअले राह है। आज दुनिया में बदअमनी, इंतशार और खलफशार का खात्मा सिर्फ उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने से मुमकिन है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम। सीरत तैयबा मोहब्बत, बर्दाश्त, अदल, मसावात और इंसानियत की खिदमत का अमली नमूना। ईद मिलादुन्नबी पर गवर्नर निहाल हाशमी, वज़ीर आला मुराद अली शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के पैगामात। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और दीगर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैराज अकीदत पेश किया। सीरत नबवी के पैगाम रहमत और मोहब्बत को आम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर फैज़ान मदीना आमद, मिलाद की रूपरवर महफिल में शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सरवरे कायनात की आमद का जश्न मनाना बड़ी सआदत की बात है। इत्तेहाद उम्मत में दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज है। सईद गनी और मेयर कराची भी वज़ीर आला के हमरा थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जश्न मिलाद के मौका पर फैज़ान मदीना आमद, वज़ीर मज़हबी उमूर रियाज़ हुसैन शाह शराजी, वज़ीर मेहनत सईद गनी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी वज़ीर आला सिंध के हमरा। वज़ीर आला सिंध दावत इस्लामी सिंध की राब्ता कमेटी के सरबराह मोहम्मद याकूब अतारी की दावत पर पहुँचे हैं। वज़ीर आला सिंध की दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारों से मुलाकात हुई है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के इंतज़ामात पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आला सिंध मिलाद की रूह परवर मजलिस में शरीक हुए हैं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाना बड़ी सआदत की बात है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मिलाद की महफिल सीरत तैयबा पर अमल करने के लिए दावत देने की बेहतरीन मौक़े फराहम करती है। उसवा हुस्ना पर अमल से ही मुसलमानों को खोई हुई अज़मत वापस मिल सकती है। इत्तेहाद उम्मत में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज है। कराची में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस भी फराइज अंजाम दे रही है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे मेराज अख्तर। बिल्कुल, आज 12 रबीउल अव्वल है, जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है बड़े ज़ोर शोर के साथ और अक़ीदत और एहतराम के साथ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस जो है वो ज़्यादातर जो है वो बोल्टन मार्केट खारदर के पास जमा होंगे और उसके बाद वहाँ से एक मरकज़ी जुलूस जो है उसमें शामिल होकर वो मरकज़ी जुलूस जो है अहमद जना रोड पर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ निश्तर पार्क में पहुँचेगा, जहाँ पर नमाज की अदायगी भी होगी और इज्तिमा भी होगा। उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो है तशबीहात भी लगाई गई हैं नुमाइश चौक के ऊपर और पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी का प्लान जो है वो मुरतब किया गया था, जिसको डिप्लॉय किया जा रहा है। डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई है, पुलिस की नफरी पहुंचना शुरू हो गई है। तकरीबन 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं जो कि आज सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मुख्तलिफ मकामात पर। इसके अलावा जो कंटेनर्स लगा के जो ज़िली सड़कें और ज़िली गलियाँ थी नुमाइश को आने वाली और अहमद जना रोड के आने वाली, उनको बंद कर दिया गया है ताकि ट्रैफिक की रवानी का मामला ना रहे। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार सड़कों पर मौजूद हैं कि दौरान जुलूस और जब ये मरकज़ी जुलूस चल रहा हो तो उस वक्त ट्रैफिक की रवानी को बरकरार
برقرار رکھیں، اس کے لیے بھی خاص انتظامات کیے گئے ہیں ٹریفک پولیس کی جانب سے۔ جو جلوس کی گزرگاہ ہے اس کی بلند عمارتوں پر ہمیشہ کی طرح اسنائپرز تعینات ہیں اور CCTV کیمروں کا ایک پورا جال بچھا ہوا ہے جس کو مختلف مقامات پر کنٹرول رومز میں مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ جی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں مرکزی جلوس میمن مسجد کھارا در سے برآمد ہوگا، جس کے باعث کھارا در اور نمائش کے اطراف کی سڑکیں عام ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ ٹریفک پولیس نے متبادل راستوں اور ٹریفک کی روانی کے لیے پلان جاری کر دیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات بتائیں گے سلمان سلیم۔ دیکھیے بالکل جشن عید میلاد النبی پوری دنیا میں جوش و جذبے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ کراچی کے بھی مختلف مقامات کے اوپر چھوٹے بڑے جلوس نکلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت ہم نمائش چورنگی صاحب کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ کراچی کی جو مختلف علاقوں سے چھوٹے بڑے جلوس ہیں وہ میمن مسجد کھارا در پہنچیں گے، جس کے بعد ایک بڑا جو مرکزی جلوس ہے وہ برآمد ہوگا اور جو اپنے مقررہ رستوں سے ہوتا ہوا نمائش پر آ کر اختتام پذیر ہوگا۔ تاہم سیکیورٹی کے بھی سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹریفک روٹس کی بات کریں تو نمائش اور اس کے اطراف کی تمام سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کیا جائے گا۔ 1 بجے کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ یہ سڑکیں جو ہے وہ بند ہو جائیں گی، جبکہ نیو میمن مسجد کی اگر ہم بات کرتے ہیں کھارا در کی تو کیونکہ وہاں سے جلوس برآمد ہوگا تو اس کے اطراف جتنی بھی گلیاں جتنی بھی سڑکیں ہیں ان کو پہلے ہی کنٹینر لگا کے سیل کر دیا گیا ہے۔ نمائش چورنگی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں عمران کے اس کنٹینر لگا دی گئے ہیں، صرف مخصوص پاس والی گاڑیوں کو اندر آنے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ یہ جو نمائش کا جس جگہ سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں یہ جلوس کا جو ہے وہ ایگزٹ پوائنٹ ہے۔ جو بھی شرکا جلوس میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ کھارا در سے انٹری لے سکتے ہیں اور یہاں سے وہ ایگزٹ ہو سکتے ہیں، تاہم مخصوص پاس والی گاڑیوں کو ہی انٹری کی اجازت دی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیگر جو ادارے ہیں جس میں ریسکیو رضاکار ہیں وہ بھی ایمبولینسز کے ہمراہ یہاں پر موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ٹریفک روٹس ہیں اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آئی چندی گڑھ روڈ ٹریفک کے لیے کھلا ہوا ہے، جہاں سے شہری اپنی آمد و رفت کو رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں خداداد کالونی کی تو خداداد سے نمائش آنے والے روڈ کو جو ہے وہ بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح سولجر بازار جانے والا جو روڈ ہے اس کو جو ہے وہ کھولا گیا ہے، لیکن نمائش سے جو سولجر بازار سڑک جا رہی ہے اس کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں صدر موبائل مارکیٹ والے روڈ کی جو کہ سیدھا ریگل اور ریگل کے بعد تبت سینٹر آتی ہے، اس سڑک کو بھی ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ MR کیانی روڈ کو ٹریفک کے لیے جو ہے وہ ابھی اس وقت کھولا ہوا ہے لیکن اس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو سول اسپتال والا روڈ ہے اس کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھولا جائے گا، لیکن جیسے ہی جلوس اس موقع کے اوپر پہنچے گا اس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس موجود ہے جو کہ تمام شہریوں کو ٹریفک کے حوالے سے آگاہی فراہم کر رہی ہے۔ جی